بسم الله الرحمن الرحيم وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قتر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، دو آیت کریمہ تلاوت کر کر میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہوں. آئیے سب سے پہلے کچھ عرض معروف سے پہلے مناسب ہی نہیں بلکہ انصب اور بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر مدنی تاجدار سید الانبیاء مقصود کائنات خواجہ بدر حنین حضور رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سورہ یونس کی یہ آیت کریمہ وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ کہ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ اور ان کے چہروں پر نہ چڑھیں گی سیاہی، یعنی ان کے چہرے کالے نہیں ہوں گے اور نہ وہ ذلیل ہوں گے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں. ایک یہ آیت. دوسری آیت وَلِلَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ بِمِثْلِهَا جَزَاءُ سَيِّئَاتٍ بِمِثْلِهَا اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیں ان کے لیے برائی کا بدلہ برائی ہے یا اسی کے مثل. وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ اور ان پر ذلت چڑھے گی، وہ ذلیل و رسوا کیے جائیں گے. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں رہے گا. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهَهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے چھائے گئے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ قرآن فرما رہا ہے اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اسی میں ان کو ہمیشہ رہنا. دو گروہ کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا گیا ہے، ایک تو اصحاب الجنہ اور ایک ہے اصحاب النار. قرآن فرما رہا ہے اصحاب الجنہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے چمکتے رکھیں گے، جن کے چہرے دھمکتے رکھیں گے. وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا نہیں کیے جائیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا نہیں کیے جائیں گے. یہ لوگ جنتی لوگ ہیں. اور ایک وہ لوگ کہ جن کے چہرے بدنما ہوں گے، جن کے چہروں پر داغ ہوگا، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، جن کے چہروں پر سیاہی ہوگی، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کیے جائیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کیے جائیں گے. قرآن فرما رہا ہے اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، جس میں ان کو ہمیشہ رہنا. کتنے گروہ کا تذکرہ ہوا آپ حضرات کے سامنے؟ آپ بھی بولیے. ایک ہے صاحب النار، ایک ہے صاحب الجنہ. ہم کون سے لوگ ہیں؟
ہم کون سے اصحاب الجنہ، ہم جنت والے ہیں. سنی کون سا ہے؟ جنتی ہے. کون سا ہے؟ ارے بولیے، معلوم ہے کیا آپ کو؟ جی ہاں جنتی ہے. جنت والوں کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو جنت پیغام تحفظ ایمان، وہ فیضان امین شریعت سے آپ کو ایک پیغام لے کر جانا ہے. اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو انہی لوگوں کا دامن تھامنا پڑے گا جو جنتی ہے. کون ہے جنتی؟ غوث اعظم جنتی ہے، حضور غریب نواز جنتی ہے، دادا حیات قلندر جنتی ہے، حضرت سرکار سید نور الدین نوری شہید جنتی ہے. یہ تمام کے تمام لوگ جنتی ہیں. اور اگر ہم ان کے دامن سے وابستہ رہیں گے تو الحمدللہ، جب تک کہ ہم ان کے دامن سے وابستہ رکھیں گے، جب تک کہ ہم ان کے غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں رکھیں گے، تو قسم خدا کی جب تک کہ ہم دنیا میں رہیں گے تو دنیا میں بھی ان کا فیض رہے گا، اور آخرت کے اندر بھی ان کی غلامی ہم کو جنت میں داخل کرنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور امین شریعت کانفرنس، عطائے حضور امین شریعت، کرامت دادا حیات قلندر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لوگ ہیں کہ الحمدللہ رب کائنات جل جلالہ وعظم والہ ان کی وجہ سے حیات بھی عطا فرماتا ہے اور ان کی وجہ سے بارش بھی عطا فرماتا ہے. حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت فرمائے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان للہ تبارک و تعالی فی الارض 300 رجل 70 قلوبهم على قلب آدم علیہ السلام وله 40 قلوبهم على قلب ابراہیل موسیٰ علیہ السلام وله 7 قلوبهم على قلب ابراہیم علیہ السلام وله 5 قلوبهم على قلب جبرائیل علیہ السلام وله 3 قلوبهم على قلب میکائیل علیہ السلام وله 1 قلبه على قلب اسرافیل علیہ السلام. فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاثة وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الخمسة وإذا مات من الخمسة أبدل الله مكانه من السبعة وإذا مات من السبعة أبدل الله مكانه من الأربعين وإذا مات من الأربعين أبدل الله تبارك وتعالى 300 وإذا مات من 300 أبدل الله مكانهم من عامة فبهم يحيي ويميت ويمطر وينبت يرفع الله تبارك وتعالى هذه البلاء من أمة. علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس زمین کے اوپر 360 بندے 300 ایسے بندے ہیں کہ جن کے دل حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دل پر ہیں. پھر حضور علیہ السلام فرماتے وَلَهُ 40 اور 40 ایسے آدمی ہیں، 40 ایسے لوگ ہیں، 40 اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کے قلوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر ہیں. پھر حضور فرماتے ہیں وَلَهُ 7 اور 7 ایسے ہیں اللہ کے مقدس بندے کے ان کے دل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دل پر ہیں. پھر حضور فرماتے ہیں اور 5 ایسے اللہ کے بندے ایسے صالحین میں سے 5 لوگ کہ ان کے دل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دل پر ہیں. حضور فرماتے ہیں اور انہی لوگوں میں سے اللہ کے ان بندوں میں سے 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل حضرت میکائیل علیہ السلام کے دل پر ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَهُ 1 اور ایک صالح ایک اللہ کا ولی ایسا ہے کہ اس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل پر ہے. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا مَاتَ الْوَاحِدُ جب وہ ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک فوت ہو جاتا ہے، ایک کا وصال ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی
3 में से 1 की भर्ती पूरी फरमा देता है। जब 3 में से कोई इंतकाल होता है, 3 में से कोई विशाल होता है, 3 में से जब कोई पर्दा करता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं 5 में से रब्बे कदीर जल्ला जलालहू व अम्म नवालहू 3 की भर्ती पूरी फरमा देता है। और जब 5 में से कोई विशाल कर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला 7 में से ये 5 की गिनती पूरी फरमा देता है। जब 7 में से किसी का विशाल होता है, अल्लाह तबारक व तआला 40 मर्दों में से 40 सालिहीन में से इन 7 की भर्ती पूरी फरमा देता है, वो कमी पूरी फरमा देता है। और जब 40 में से कोई विशाल होता है, पर्दा होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला 300 में से 40 की भर्ती पूरी कर देता है। फिर हुजूर फरमाते हैं जब उन 300 में से किसी का इंतकाल होता है, किसी का विशाल होता है, कोई पर्दा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला आम आदमी से चुनकर वो 300 की भर्ती पूरी फरमा देता है, 300 की कमी पूरी कर देता है। ये कौन से लोग हैं? आपके तरीके, हमारे तरीके, ये दीन की एडवर्टाइज करने वाले नहीं, ये दीन का तमाशा करने वाले नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं फदीहिम यूही व युमीत, ये ऐसे लोग हैं कि अल्लाह इन्हीं की वजह से जिंदगी भी अता फरमाता है और मौत भी अता फरमाता है। वो युमतिरो वो युम्बितो, ये ऐसे लोग हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हीं की वजह से बारिश भी बरसाता है और ऐसी उगाता है, सब्जा भी उगाता है। कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वो यरफअ अल्लाहु, और अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं नुफूस कुदसिया के जरिए रब्बे कायनात इसी सालिहीन के तसद्दुक से, इन्हीं सालिहीन के सदके में इस उम्मत पर जो भी अलाए बलाए मसाइब नाजिल होती है, रब्बे कदीर इन नुफूस कुदसिया में उन बलाओं को टाल देता है। इन नुफूस कुदसिया के तसद्दुक से उन बलाओं को टाल देता है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मज़मून जो आपने समाअत फरमाया उसकी मुख्तसर सी तशरीह आपके ज़हन के हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कुछ तो अल्लाह के बंदे ऐसे हैं, कुछ तो सालिहीन ऐसे हैं जिनके कुलूब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कल्ब पर है, कुछ तो ऐसे हैं कि जिनके कुलूब हजरत मूसा के कल्ब पर है, कुछ तो ऐसे हैं कि जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के तरीके पर है, कोई तो ऐसे हैं कि जो हजरत शीश अलैहिस्सलाम के तरीके पर है, कोई तो ऐसे हैं जो हजरत इब्राहिम के तरीके पर है, कोई अल्लाह का वली ऐसा है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तरीके पर है। गोया के हर अल्लाह का वली किसी न किसी नबी के तरीके पर है। और खुद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे उम्मत के वली ये बनी इसराइल के नबियों की तरह है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुकद्दस बारगाह से इतनी बड़ी सनद अता फरमाई कि हर अल्लाह का वली किसी नबी के तरीके पर है। हजरत शीश के तरीके पर कोई वली है, हजरत ईसा के तरीके पर कोई वली है, हजरत इब्राहिम के कदम पर कोई वली है, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के कदम पर कोई वली है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह के कदम पर कोई वली है, हजरत ईसा रूहुल्लाह के कदम पर कोई वली है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मत का वली हर नबी के किसी ना किसी के कदम पर है। लेकिन आओ हम जिस से आदम के नाम से याद कर रहे हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पर कौन है? हर वली तो हर नबी के कदम पर है। मेरे सरकार बगदाद इरशाद फरमाते हैं, मेरा कौल अर्ज करता है कुल्लु वलीकिन कदमुन व अन्नी कदमुन अला नबील कदरिल कमाल, कि मेरे जद्द अमजद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत का वली हर नबी के कदम पर है। लेकिन अब्दुल कादिर जो है वो अपने जद्द करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा ये अजमत वाले खानदान का अजमत वाला शहजादा अर्ज करता है कि हाँ हर वली किसी न किसी नबी के तरीके पर है, किसी न किसी नबी के कदम पर है। लेकिन अब का कदम जो है ये उसके जद्द आला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है कि जो कदम उसके नाना जान का है, जो कदम उसके जद्द करीम का है, उसके बाद कदम अब्दुल कादिर का है। और जिसका हम फैजान लेने के बाद से बैठे हुए हैं, ये उन्हीं का फैजान है कि जिसको अमीन शरीयत बनाया गया है। ये बारगाह गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारका व तआला
अन्हु से बनाया गया है। ये वही बारगाह है कि जिस बारगाह में जो भी पहुंचा है तो उस बारगाह ने उसको इतना नवाजा है कि दुनिया देखते हुए रह गई। आइए मैं आपको अजमत औलिया सुना रहा हूँ और हम जन्नती लोग हैं। यही जन्नती लोगों का क्या पैगाम है वो आपके गोश से गुजार कर रहा हूँ। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि वक्त अपने दामन को समेट रहा है, ताकि जन्नती पैगाम जो है, हक पैगाम जो है, ताफुज़े ईमान कान परस है। आपको अपने ईमान की हिफाजत करना है और ये देखना है कि आज से 1400 साल पहले भी साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन लोग बोलते हैं कि ईद मिलादुन नबी का जुलूस साहबा ने निकाले क्या, कि हुजूर ने निकाले क्या। अरे हमारा तरीका वही तरीका है बाबू जो साहबा का तरीका है। अब साहबा मजार पर गए क्या? साहबा ने अल्लाह वाले जहाँ रहते हैं ऐसे लोगों की, ऐसी जगह की इज्जत करे क्या? अब करे क्या नहीं करे, मैं आपको हदीस पाक सुना रही हूँ। अब देखिए कि साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने ऐसी मुकद्दस जगहों की कि जहाँ अल्लाह के मुकद्दस वली रहते हैं, ऐसी जगहों की साहबा ने भी इज्जत फरमाई, जिसको हम बाबो मदीनतुल इल्म कहते हैं। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, व अन शुरै इब्ने उबैद रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु क़ाला ज़ुकिरा अहलु शाम इंदा अली फ़क़ाला इल अनहुम या अमीरुल मोमिनीन फ़क़ाला अली रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु क़ाला ला इन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल अफ़दालु यकूनुना व हुम अर्बऊन रजूलन कुल्लमा माता अब्दलल्लाहु मकानहु युस्का बिहिम व युंतसरु बिहिम अलल आदा व युसरफु अन्हुम अहली शाम बिहुमुल अदा। साहबा का मजमा है ये। ज़हन के अगर आप हवाले कर ले, आप अपने जहन में इसको अगर मजबूती से गिरा बांध दे, तो मैं ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से आप जाएंगे तो जिंदगी भर जितना भी बड़ा डाकू आपका ईमान लूटने के बाद से अगर आए तो आपका ईमान नहीं लूटेंगे। अब उनसे ये पूछना कि इन मुकद्दस जगहों की ताज़ीम इज्जत फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास शाम वालों का जिक्र हुआ, हज़रत अली नारिया का जिक्र हुआ, शाम वालों का जिक्र हुआ। लोगों ने ये कहा, तो साहबा ने ये कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन, शाम वालों पर लानत कीजिए। क्या कीजिए? लानत। क्या कीजिए? यानी बुरा भला कहिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ला इन्नी समुइतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अब्दाल यकूनून। हजरत अली फरमाते कि नहीं, मैंने सुना कि शाम के अंदर अब्दाल होंगे। क्या होंगे? अब्दाल देखे आपने? नहीं देखे? नहीं देखे क्या? अरे बोलिए ना, नहीं देखे? देखना चाहते हैं क्या? देखना चाहते हैं क्या? ऊंची आवाज से बोले, ऊंची आवाज से बोलो ना यार। बस यही हदीस सुनाकर यही हदीस पर अपनी गुफ्तगू समेट लूंगा इंशाल्लाह। देखना चाहते हैं आप? हज़रत अली ने क्या फरमाया? ला इन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दालुल यकूनून। नहीं, मैं शाम बुरा भला नहीं कहूंगा, मैं शाम वालों पर लानत नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी सुना कि शाम में अब्दाल होंगे। हज़रत अली फरमाते वो हुम अर्बऊन रजूलन, वो 40 लोग रहेंगे। अब देखिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, आपने कहे कि हम अब्दाल देखना चाहते हैं, है ना? देखना चाहते हैं ना? अभी देखेंगे बाद में, हाँ अभी देखेंगे आप। हुजूर अमीन शरीयत रज़ी अल्लाह तआला आ रहे हैं। एक वली का साहबजादा जलवगर जलवा फरमा हो रहा है, वो हुजूर अमीन शरीयत जो अपने वक्त के अब्दाल भी थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनका फैजान हम तमाम सुन्नियों के लिए है। उनका साहबजादा वली सलमान रजा अभी कुछ ही देर में आने वाले हैं। उनके चेहरे की जियारत कर लेना, और अगर अब्दाल वक्त के और अगर जियारत करना है तो मैं आपको निशानदाही कर देता हूँ, हुजूर ताजुश शरिया को देख लेना, अपने अब्दाल को देख लेना। हजरत
अली ने फरमाए ला इन्नी समी तो रसूल अल्लाह, नहीं मैं शाम वालों को बुरा भला नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने सुना कि वहाँ अबदाल होंगे। गोया हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बता रहे हैं, हमको हजरत अली ने 1400 साल पहले ये पैगाम दे दिए कि जहाँ अल्लाह का वली रहता है, जहाँ अल्लाह के मुकद्दस बंदे रहते हैं, उन जगहों की ताज़ीम की जाती है, उन जगहों की इज्जत की जाती है। और जनाब किसी ताज शरीफ को और नवाज शरीफ को शरीफ नहीं कहा जाता, शरीफ उसी को कहा जाता है जहाँ शरीफ रहा करते हैं, शरीफ उसी को कहा जाता है जहाँ अल्लाह के मुकद्दस बंदे रहते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि जब तमाम नबियों का सरदार मदीने में आया तो वो मदीना शरीफ बन गया, और जब तमाम वलियों का सरदार बगदाद की सरजमीन पर आया तो वो बगदाद शरीफ बन गया, और जब हिंदुस्तान का ताजीदार अजमेर की धरती पर आया तो वो अजमेर नहीं रहा, वो अजमेर शरीफ बन गया। और जिसने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई, जिसने हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई, जिसने हमारे हर चीज की हिफाजत फरमा ली, जिसने रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहले बैत की इज्जत की हिफाजत फरमाई और दुनिया वालों को बता दिया, जब वो आया तो वो बरेली नहीं रहा, वो बरेली शरीफ बन गया। और हमने ये कहा कि हाजा रूहानियत तौर पर अगर से हमारा बाबे जन्नत मदीना है, लेकिन सुनो सुनो, जो जन्नत में दाखिल होने का तरीका बताया, जिसने जन्नत के रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया, वो बरेली के इमाम अहमद रजा खान है। तभी तो हम उनके खून गा रहे हैं कि इमाम अहमद रजा ने हमारे ईमान की भी हिफाजत फरमा ली और इमाम अहमद रजा ने हमारे अकाईद की भी हिफाजत फरमाई। तो हजरत अली ने फरमाया कि जहाँ अल्लाह वाले रहते, ऐसे धड़ूस जो लोग रहते, ऐसे काले पीले लोग रहते, वैसे लोगों की इज्जत नहीं की जाती, वैसे जगहों को ताज़ीम से नाम नहीं लिया जाता, बल्कि जहाँ अल्लाह का वली रहता है उस अल्लाह के वली के दयार को ताज़ीम से नाम लिया जाता है। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, मैं बुरा नहीं कहूँगा, मैं बुरा भला शाम वालों को नहीं कहूँगा। और फिर एक पैगाम ये आप हजरात के नाम, हमने बरेली शरीफ कह दिया, हमने बगदाद शरीफ कह दिया, हमने कलियर शरीफ कह दिया, तो ये कहते हैं अरे शिर्क कर दिया इसने, अरे बिस्सती लोग हैं। अभी क्या हो रहा है मालूम आपको? अभी तो हमने कहे नहीं, ना हमारे असलाफ ने हमको ऐसा सिखाया, ना हमारी जमात के आलिमों ने हमको ये तालीम दी। हम कहते हैं मदीना अफजल है, हम कहते हैं मक्का अफजल है। अब इन्होंने ये बात लाए कि मक्का और मदीने के बाद अफजल वाली जो जगह है वो इनका सनम खाना है। सनम खाना समझ रहे आप? काका काका हाँ, इन्होंने कहा कि मदीने के बाद और मक्के के बाद जो वाली जगह है हमारा ये है ईदगाह घर। मुकद्दस चले गया, अब आगे ये अपनी अजमत बता रहे हैं, ये अपनी फजीलत बता रहे हैं। और क्या कहें मुसलमानों, ईमान की हिफाजत फरमाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा में 1,24,000 सहाबा इकराम हैं। उन सहाबा में अफजल वाले सहाबा कौन से मालूम आपको? बदरी सहाबा। कौन से सहाबा? बदरी सहाबा समझते ना, जो 313 बद्र के मैदान में शरीक होकर जिसने की इस्लाम की हिफाजत फरमाई। ये क्या कह रहे मालूम? शराबी को, जानी को, डाकी को, चोर को हमारे साथ घुस, हमारे साथ फिर मर जाएगा तो हमारे साथ रहकर तो तू बदरी साहबा से भी अफजल रहेगा। ये कह रहे हैं वीडियो जब भी सुनना है सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी के साथ बोल रहा। और क्या किया, हम तो फिर इमाम हुसैन शहीद हो गए, फला शहीद हो गया। इन्होंने कहा ये भी शहीद, भगत सिंह भी शहीद, इंदिरा गांधी भी शहीद, ये भी शहीद, वो भी शहीद। इन्होंने काफिरों को भी शहीद बना दिया, काफिरों को भी शहीद बना दिया। और कुरान ने पाक में जिसको शहीद कहा, अगर उसकी तफसीर रखूं मैं आपको या उस जात को रखूं आपकी निगाहों के सामने,
तो वो हजरत इमाम हुसैन की जाती पाक है, वो हजरत अमीर हमजा की जाती पाक है। और इन्होंने पैसों की लालच देकर ख्वाजा साहब से मांग लिया, शिर्क कर लिया, गैरुल्लाह से शिर्क मांगना। ये खड़े से पेशाब करने वाले के पेशाब करने हमारा आरक्षण दे दो, आरक्षण मांगने के बाद जो खड़े से पेशाब कर रहा है। और ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का फज़्ल देखो, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की इनायत देखो कि मेरा गौस कहता है कि अब्दुल कादिर के कुलूब अल्लाह ने मेरे मुट्ठी में कर दिए हैं। जब चाहता है अब्दुल कादिर अपने तरफ फेर लेता है और जब चाहता है अपने तरफ से उनको फेर देता है। ये मेरे सरकार का करम है कि सरकार गौसे आज़म ने अपने गुलामों को अपनी तरफ फेरा है और जो इस लायक नहीं थे जो खड़े से पेशाब कर रहे हैं उनकी तरफ फेंक दिया मेरे गौसे आज़म। बेशक तुम डालो उनसे मदद लो, इस लायक है भी नहीं, है ना? इस लायक है भी नहीं हो। बेशक बेशक गौसे आज़म से मदद मांगे तो शिर्क है, गरीब नवाज से मदद मांग रहे तो शिर्क है। और ये जा रहा है जिसको सन्नास होकर भी नहीं आ रहा, बरोबर हमारा आरक्षण दे दो ना। क्या मेरे गरीब नवाज ने गौस से आज़म का भी फैजान के अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी गौस देता है तो जनाब ऐसा वैसा नहीं, बुलाता है चाहने वाले को, जिसको देना है उसी को बुलाता है। हदीसे पाक का मजमून छूट रहा है, ऐसा ना हो कि दूसरी जो बात आई वो मेरे हाशिया ज़हन से निकल जाए। जिन्होंने कहा कि हमारी ये अफजल जगह है मक्का और मदीने के बाद, तो सुनो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली कल भी हम इसको मानते थे, हम आज भी मानते हैं, हमारी विरासत का हिस्सा कई सालों से लाल किले की शक्ल में मौजूद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले सुन्नत दिल्ली को लाल किले की बुनियाद पर नहीं, अरे वो तुम्हारा सनम खाना है, वो तुम्हारा गिरजाघर है कि तुमने उसको मक्के और मदीने से भी अफजल बताया है। हम औलिया किराम वाले हैं, हम दादा हयात कलंदर वाले हैं, हम गौस खाजा वाले हैं। दिल्ली को कल भी हम मानते थे लेकिन लाल किले की वजह से नहीं, दिल्ली को कल भी हम मानते थे लेकिन जंतरी मंतरी की वजह से नहीं, दिल्ली को सुबह क़यामत तक हम मानेंगे लेकिन सरकार निजामुद्दीन औलिया की वजह से मानेंगे, खाजा बिल खाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की वजह से मानेंगे, करामत रसूलुल्लाह फिल हिंद हजरत शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी की वजह से मानेंगे। और दिल्ली हमको ये पैगाम दे रही है कि मेरे सीने में कई अल्लाह के मुकद्दस वली आराम फरमा रहे हैं। इन्होंने मान ली इनका गिरजा कर रहे तो ये मक्के और मदीने के बाद अफजल ये है। अरे हमने नहीं कहा ऐसा। और जब ताजदारे बरेली से कहा कि हुजूर मक्का अफजल है या मदीना अफजल है, तो मेरे ताजदार ने कहा, अहले सुन्नत के इमाम ने कहा, मक्का न सही अफजल, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा था। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ला इन्नी समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ अफजाल होंगे। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पैगाम दे दिया कि जहाँ अल्लाह के मुकद्दस वली रहते हैं उन जगहों की इज्जत की जाती है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वहाँ अब्दाल होंगे, और वो कितने होंगे, वहू मरबऊन, वो 40 लोग रहेंगे। कुल्लमा माता अब्दल्लाहु मकानहु रजुलन, जब उन 40 में से कोई इंतकाल हो जाता है, विशाल कर जाता है, फौत हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में किसी एक को खड़े कर 40 की भर्ती पूरी फरमाती है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, युस्का बिहुमुल गैस, अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं की वजह से बारिश बरसाता है। क्या बरसाता है? बारिश। अरे तभी तो सलातुल इस्तिस्का इतनी अदा की जाती, हमारे वहाँ भी 3-3 दिन तक के ईदगाह पर जा रहे पैदल, बारिश नहीं हुई। अरे इखलास ही नहीं रहना जी, रियाकारी आम होगी। नमाज लोगों के वास्ते कितनी बड़ी हजरत, कितनी लंबी नमाज पढ़े देखो। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो यूं तसरु बिहुमुल आदा, और अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं की वजह से दुश्मनों पर मदद भेजता है, मदद की जाती है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो युसरफो
बिहुमुल बलाओ अनहली शाम, और शाम वालों पर जो भी बलाएं आती हैं रब्बे कायनात इन्हीं के तसद्दुक से उनको रफा और दफा फरमा देता है। अब आइए हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो हदीस के मजमून आपकी निगाहों के सामने रखा हूँ कि अब्दाल क्या चीज होती है। आपने समाज फरमा लिया कि इनकी वजह से बारिश होती है, इनकी वजह से अल्लाह जिंदगी अता फरमाता है, इनकी वजह से जमीन से सब्जा उगता है, इन्हीं की वजह से जो उम्मत पर अलाए बलाए नाजिल होती है अल्लाह तबारक व ताला उसको रफा और दफा फरमाता है। ये अब्दाल का मर्तबा है जी। काय का किसका मर्तबा है? अरे बोलिए। अब्दाल हमने आपको बता दिए, निशानदाही कर दी है। ये अब्दाल का कई कोर्स होता, अब्दाल कई बनता, कई इसका भी मददता है, कई इसकी भी सोचता है। आओ जिसको हम गौसे आजम कहते हैं, जिसको हम शेख अब्दुल कादिर के नाम से याद करते हैं, जो सरकार बगदाद है, इन्हीं की फैक्ट्री है, इन्हीं के पास में अब्दाल बनाए जाते हैं। कैसे? एक मुख्तसर सा वाक़िया तुम्हारे जहन के हवाले कर कर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक मरतबा सरकार गौसे आजम खानका में रियाजत फरमा रही है। एक चोर आगुरी करने लगा कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बहुत कुछ है, लोगों के नजराने इनके पास बहुत जमा है। जब उसने गठरी तैयार कर दिया, पुतली बांध लिया, जब उठाने लगा उसी वक्त उसके आंखें चली गई। समाज फरमाया ना आपने वाक़िया, अंधा हो गया। कई मरतबा ऐसा हुआ कि जब भी खाता दोनों आंखों से अंधा हो जाता, जब जमीन में रख देता उसके आंखों का नूर वापस आ जाता। इसी तरह निस्फ रात गुजर गई। निस्फ रात गुजरने के बाद सरकारे बगदाद रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु अपनी खानका में इबादत और रियाजत कर रहे थे। दरवाजे से तकली की आवाज आई, किसी ने खटखटाया। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खादिम से अर्ज करते हैं कि खादिम जाओ दरवाजा खोलो। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। खादिम ने दरवाजा खोला, बड़ी इज्जत के साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को अंदर लाया गया, बिठाया गया। हुजूर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं सरकारे बगदाद रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु से, मुसलमानों सुनो, अपना अकीदा मजबूत कर लो। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि हुजूर फला फला शहर में, फला फला गांव में एक अब्दाल का विसाल हो गया, वहाँ किसी अब्दाल की जरूरत है, किसी को अब्दाल मुकर्रर फरमा दीजिए। सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु ने ये नहीं कहा खिज़र कल चले आना, खिज़र अभी मेरे पास अब्दाल नहीं है, खिज़र मैं बाद में बताऊंगा। अरे आपकी और हमारी तो ये बात है कि मदरसों में अगर मुदर्रिस की जरूरत है, एक एक महीना 8-8 दिन तक इंतजार करना पड़ता रहता है। लेकिन आओ मेरे गौसे आजम की वो बारगाह है कि हजरत खिज़र आ रहे हैं। अर्ज करते हैं हुजूर फला इलाके में अब्दाल का इंतकाल हो गया, अब्दाल की जरूरत है। हुजूर गौसे आजम अपने खादिम से अर्ज करते अंदर जाओ, एक शख्स बैठा हुआ है, उसको मेरे पास लाओ। खादिम जाता है, ये देखता है कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, अब मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरे हाथ काट दिए जाएंगे, क्योंकि चोरी की सजा दोनों हाथ काटना है। वो अर्ज करता है कि मैं आज के बाद नहीं आऊंगा। हुजूर गौसे आजम का खादिम अर्ज करता है कि बाद में तू आ या मत आ, लेकिन अभी तुझे मेरे सरकार बुला रखे हैं, मेरे गौसे आजम बुला रखे हैं। गौसे आजम की बारगाह में इसको लाया गया। सरकार गौसे आजम ने क्या किया, कुछ पड़ा नहीं, बल्कि सरकार गौसे आजम ने अपना हाथ उसके सर पर रखा और फरमाया कि खिज़र जाओ फला जगह का अब्दाल अब्दुल कादिर ने इसको मुतय्यन किया। वो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैजान है कि चोर जा रहा है, तो वक्त में एक ही वक्त में मेरे सरकार गौसे आजम को अब्दाल बना रहे हैं। और दुनिया में जितने भी जमाते हैं, जितने भी तहरीके हैं, तमाम जमातों को मेरा चैलेंज है, अल्हम्दुलिल्लाह ये नमाज पढ़ने वाले, ये रोजा रखने वाले, बताओ इनको इतने साल से तुम ये काम कर रहे हैं, आज तक से तुमने कोई वली पैदा किया? कोई वली पैदा हुआ? नहीं हुआ। अरे नहीं, और हो भी नहीं सकता कि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की आमद तक अगर वली पैदा होगा
तो सिर्फ और सिर्फ जमात अहले सुन्नत में वजीफे, क्योंकि विलायत का ताजदार, वलियों का सरदार अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के पास है। और मेरा दोस्त अर्ज करता है कि अब्दुल कादिर को अल्लाह ने विलायत की दौलत अता कर दी है। अब्दुल कादिर चाहे जिसको विलायत अता करे और जिसको चाहे विलायत से माजूल फरमा, वो मेरे गौस का फरमान है। और आप दुनिया वालों को हम ये ललकार करते रहे हैं कि तुम इतने दिन से काम कर रहे, बताओ अभी तक कि तुम्हारे वहाँ कोई वली पैदा हुआ? आपको नहीं क्या नाम है उनका? गुलाब शाह मियां। कितने साल पुराने बाबू? 150 साल। 150 साल। कितने? 150 साल। ये करे हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए होंगे, हुजूर कहाँ हैं? इनको इनकी खबर नहीं, तो ये हुजूर की बात करें। ये कहाँ जा रहे, किधर जा रहे बाबू? हजरते गुलाब शाह मियां सरकार ईमान की हिफाजत चाहते हो मुसलमानों, सुनो। वो हजरते गुलाब शाह मियां और उनकी एक खातिमा हजरते बीबी शबनम उर्फ अम्मा जान खिदमत करती थी। अल्लाह अल्लाह 75 साल हो गए जब इनको निकाला गया। गुलाब शाह दादा मियां सरकार भी अल्हम्दुलिल्लाह और उनके खादिमा भी, देखने वालों ने देखा कि जब उनको कब्र अनवर से निकाला जा रहा था, अरे वो तो सलामत थे, उनका कफन तो सलामत था, उनके कफन के ऊपर जो फूल डाले हुए थे वो फूल भी तरोताजा नजर। ये है हमारे जमात के सरकार, ये है हमारे जमात वाले। अगरचे हम गुनाहगार, अगरचे हम खताकार, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सरकारों से हम वाबिस्ता है, ऐसे सरकारों का दामन हमारे हाथ में है। उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में भी हमारी नैया पार हो जाएंगे, आखिरत में। तो ईमान की हिफाजत कीजिए। क्या? अरे बोलिए ना, ईमान की हिफाजत कीजिए। एक बात बताकर अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। वो सरकार ऐसी सरकार है, जब वो नवाजते हैं तो ऐसा वैसा नहीं। कैसे नवाजते? सुनिए। जिस वक्त हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु का ये फैज याफ्ता, उनका मुरीद कि जिसके अजमत के डंके जमीनों पर ही नहीं बल्कि आसमानों पर भी किए जा रहे थे, हजरत सरकार मोइनुद्दीन अजमेरी सुम्मा संजेरी रजी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु को जब उनके पीर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु ने कहा कि मोइनुद्दीन बगदाद की सरजमीन पर जाओ, आ जाओ, बगदाद की सरजमीन पर जाओ और सरकारे गौसे आजम रजी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु से फैज हासिल करो, और जहाँ भी सरकारे गौसे आजम इजाजत देंगे उस जगह पर चले जाना। सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु बगदाद की सरजमीन पर गए। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु से फैज हासिल कर रहे हैं और सिर्फ अपने वक्त के सय्यद औलिया इकराम, अपने वक्त के मुफस्सिरीन, अपने वक्त के उलमा इकराम सरकार बगदाद रजी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु की बारगाह में जब फैज हासिल कर रहे थे, और जब फैज हासिल करने के बाद जब देखा सरकार बगदाद हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु को कि सरकार बगदाद रजी अल्लाह तआला अन्हु का रहमत का दरिया जोश में है, कि सरकार गौसे आजम विलायत तकसीम फरमा रहे हैं, सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु अपने जद्दे करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत तकसीम फरमा रहे हैं। तो अर्ज करते हैं वो अन्ना शेख अल वासिलीन मोइनुल हक वद्दीन तलबल इराक मिनल गौसी आजम फकाल लहुल गौसिल आजम उतीतुल इराक शहबुद्दीन उमर सरवर्दी या मोइनुद्दीन उतीतुकल हिंद। गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जब फैज मुकम्मल हासिल कर लिया तो एक मर्तबा देखे कि दरियाए कादरी जोश में है, अर्ज करने लगे हुजूर इराक अता फरमा दीजिए। क्या फरमा दीजिए? इराक से इंगोली के तनी इराक, ये 52 खुली के तनी इराक,
इराक नाम सुने ना, इराक का कर दीजिए। अरे इतना सा बच्चा 70 साल की नौकरी कुछ अगर वली से मांग ले तो ये कहते शिर्क है, बिद्दत है, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क। हुजूर गरीब नवाज अर्ज कर रहे हैं कि सरकार मुझे कुछ नहीं, पूरी इराक की सल्तनत चाहिए, इराक की विलायत चाहिए। हुजूर गौ के आजम फरमाते हैं, गोया गरीब नवाज अलैहि रहमान ने भी पैगाम दे दिया कि हाँ वली अल्लाह से मांगना ये शिर्क नहीं है, बल्कि वली अल्लाह से मांगना, हुजूर गरीब नवाज ने फरमा दिया, ये तुम्हारे हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज की सुन्नत है। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि मोइनुद्दीन उतीतुल इराक शहाबुद्दीन सरवर्दी, मैंने तो इराक जो है शहाबुद्दीन सरवर्दी को अता कर दिया, यहाँ की विलायत मैंने शहाबुद्दीन सरवर्दी को अता कर दिया, और रह गई बात तुम्हारी तो मोइनुद्दीन मैं तुम्हें हिंदुस्तान अता करता हूँ। हिंदुस्तान की जिंदाबाद। क्या फरमाए हुजूर गौसे आजम ने कि मोइनुद्दीन मैं तुम्हें हिंदुस्तान अता कर रहा हूँ। और जब मेरे सरकार बगदाद ने मेरे गरीब नवाज को हिंदुस्तान अता किया, तो अल्लाह अल्लाह, अरे बादशाह आएंगे, मेंबर आएंगे, नगर सेवक आएंगे, 5 साल के बाद बदल जाएंगे। मेरे दोस्त ने मेरे गरीब नवाज को सिर्फ 5 साल की बादशाह अता नहीं की, 10 साल की बादशाह अता नहीं की, जब तक के ये सूरज कायनात को रोशनी दे रहा है, तुझे क़यामत तक मेरे दोस्त ने शाहजहां साहब को हिंदुस्तान का वली बना दिया है, हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया है। और वो दरबार से भी जब अता होती है तो ऐसी नहीं, जब उनकी बारगाह में अपनी चौखट झुकाने वाला आता है तो मेरा गरीब नवाज 50 साल तक के उसको सल्तनत अता करता है, और जब वो अपना चेहरा फेर देता है तो मेरा गरीब नवाज भी गरीब नवाज है। वो ये नहीं देखता कि अभी तक के अपने वक्त का 50 साल बादशाह मेरी चौखट पर आ रहा था, अब उसने मुंह मोड़ लिया। अरे जब गरीब नवाज की फेर होती है तो मेरा गरीब नवाज चाय बेचने वाले को भी बादशाह बना देता है। क्या कहने, ये गरीब नवाज की ही अता है कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारका व तआला ने हिंदुस्तान का वली हुजूर गरीब नवाज अली रहमतुल्लाह व रिज़वान को बनाया है। और आज तक के जितने भी वली हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दावे के साथ बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जमाते अहले सुन्नत ही में हुए हैं, और जमाते अहले ही सुन्नत में विलायत ही चलेंगी, दूसरे इसमें हो ही नहीं सकती वली जी, वली दूसरे इसमें हो ही नहीं सकते, क्योंकि विलायत का जो ताजदार है वो सुन्नियों के पास है। गौसे आजम हमारे पास है, गरीब नवाज हमारे पास है, और सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारका व तआला की वो बारगाह जनाब ऐसी छोटी मोटी नहीं। लोग कुछ दिन नमाज पढ़ के कुछ दिन रोजे रखकर बोलते थे हम भी गौसे आजम बन जाएंगे, हम भी गरीब नवाज बन जाएंगे। अरे कबूतर के नीचे पहले तेरा मुंह तो देख, गौसे आजम बनने के चक्कर में है, गरीब नवाज बनने के चक्कर में है। 3 दिन की नमाज में और 6 महीने की नमाज में गौसे आजम का रुतबा क्या है मालूम? इबारत पेश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अब मजमून ही आपके ज़हन के हवाले कर रहा हूँ। जब अल्लाह किसी को वली बनाता है, किसको, जब अपने बंदों में से किसी को वली बनाता है तो उसका नाम, उसके बाप का नाम फरिश्तों के जरिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लेकर भेजता है कि जाओ हमारे महबूब की बारगाह में और हमारे महबूब से ये कहना कि महबूब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये विलायत के काबिल है या नहीं। फरिश्ते हुजूर की बारगाह में आते हैं, वो फरिश्ते जब हुजूर की बारगाह में पहुंचते हैं तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों से अर्ज करते हैं, फरिश्तों से फरमाते हैं कि फरिश्तों इसका नाम और इसके बाप का नाम
क्या खुजो इला वलदी सैयदी अब्दुल कादिर, कि मेरे बच्चे सैयद अब्दुल कादिर के पास लेकर जाओ। फरिश्ते हुजूर सरकार गौसे आजम के पास बड्डा शरीफ लेकर जाते हैं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं कि यरा लियाकतहु वो इस्तिकातहु, कि सरकार गौस इसकी लियाकत को देखिए और इसके इस्तिकात को देखिए कि ये विलायत बनने के काबिल है या नहीं। जब सरकार गौसे आजम उसका नाम देखते हैं, मालूम ये रहता है कि अगर वो विलायत के काबिल है तो हुजूर गौसे आजम दफ्तर मोहम्मदिया में उसका नाम लिख देते हैं और फरिश्तों से अर्ज करते हैं कि फरिश्तों अब्दुल कादिर ने उसका नाम दफ्तर मोहम्मदिया में दर्ज कर दिया है और अब्दुल कादिर अपने तरफ से उसको विलायत की खिलाफत अता फरमा रहा है। ये फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं। हुजूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, तुम्हारे बच्चे अब्दुल कादिर ने उसको विलायत के लिए चुन लिया है। विलायत की खिलाफत बारगाह गौसिया से उसको मिल चुकी है और हुजूर गौसे आजम ने दफ्तर मोहम्मदिया में उसका नाम दर्ज फरमा दिया है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरिश्तों से अर्ज करते हैं कि जब मेरे बच्चे अब्दुल कादिर ने उसको विलायत के लिए